आपने किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, उसे मास्टर करने के लिए अराउंड वीक्स, मंथ्स और ईयर्स दे दिए और उसके बाद रियलाइज किया कि दिस लैंग्वेज इज बेली आउटडेटेड और हैविंग नो फ्यूचर स्कोप। और उससे भी ज्यादा एक स्कैरी पार्ट बताता हूँ, अराउंड 60% ऑफ डेवलपर क्विट विद इन अ ईयर बिकॉज दे चूज रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक विच लैंग्वेज विल स्काई रॉकेट इन 2025 एंड ऑल्सो इन नेक्स्ट ईयर 2026, और कौन सी लैंग्वेज जो डिक्लाइन होगी फॉर कमिंग ईयर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज विश्वम सोलंकी, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, let's get into it. Learning programming language by giving 3, 4 or at least 5 months, it's not a bad thing, but select a proper language that will fit your niche and your interest is also very important. For example, a person is willing to learn Ruby language, he gives us 6 to 4 months for it, and after that he realized that there are no jobs in their region or in their city. So it's not just a loss of time, it's also a loss of income as well as lots of motivation. And today we will see some specific programming language, also rank up according to the different factors which you have chosen. So let's see how it goes. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक रैंकिंग चार्ट पे आ गए हम, और जिसमें मैंने कंसिडर की ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस, बट हाँ हम मेनली चूज करेंगे 8 languages that are selectively on the factor that they are mostly in demands and they are very popular in public as well as in this industrial area, corporate area. So ये languages मैंने choose की है, name as Python, TypeScript, JavaScript and Ruby, Rust, PHP, C, Kotlin and so more. सो इन लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे एंड मैंने यहाँ डेडिकेटेड शीट बना रखी है और उसमें से मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे रैंक करती है। सो सबसे पहले आपको मैं फैक्टर्स बता देता हूँ कि फैक्टर्स कौन से होंगे। सबसे पहले फैक्टर्स होंगे करियर गोल, मार्केट डिमांड, फ्यूचर ग्रोथ, लर्निंग कर्व्स, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड पर्सनल इंटरेस्ट। माई प्राइमरी लैंग्वेज इज पाइथन। तो मैंने पाइथन आपको बेसिकली बता देता हूँ, और मैं पाइथन को किस कैटेगरी में रखता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं पाइथन को अराउंड एस कैटेगरी में रखूँगा बिकॉज इट्स एन आउटस्टैंडिंग लैंग्वेज। हर स्कोप में, हर फील्ड में ये अपना बेस्ट देती है। सो मैं कुछ रीजंस है उसके वो भी आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम करियर गोल्स, it's ideal for AI/ML, data science, web development for backend basically like Django app, Flask and automation, and right now for scripting, scrapping, you name the thing, Python is there. For the multitask, for the multi-variety, Python is very useful, and market demand is increasing drastically because job posting massive data shows that 49% usage among the developers is Python, and average salary around Python is is $121,000 to $122,000 in USA, and future growth is continuously grow significantly, and 8% it jumps to 23% in next 2026, and community resources are widely in range. You can use lots of community resources. And also personal interest, my personal interest is Python because it's a broad in application, fits nearly in my interest like machine. I do lots of automation, machine learning, AI, ML and lots of things. So I choose Python for more significant language right now and also for future because this AI is booming is very high. Coming next, and it's one of the most popular language after Python or before Python, it's JavaScript. I choose JavaScript in A. Why it's popular? It's popular because ये दोनों साइड से काम करता है, from client side and also from server side. Basically it's front end development skills, full stack. आप इसमें बहुत सारे framework यूज कर सकते हैं जैसे Node.js हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन like React Native, scalable front end types और back end types में भी इसको बहुत यूज किया सकते हैं। इसकी मार्केट डिमांड, सैलरी इज इंक्रीज रैंक 69%, इंडियन यूएस सैलरी इज अराउंड $100,000 to $150,000, ऑल्सो इंक्लूडिंग टाइपस्क्रिप्ट इन हेयर। मैं टाइपस्क्रिप्ट भी बात करता हूँ विच अ न्यू स्टाइल ऑफ फ्रंट एंड स्केल। मैं भी उसको ए कैटेगरी में यूज़ करूँगा बिकॉज इट्स सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट बट हैज़ अ मोर एडवांस फीचर, और इसकी भी सैलरी रेंज अराउंड $125,000 to $135,000 इतनी प्राइस रेंज में यूएस की इसकी डिमांड है। सो इट्स वेरी यूजफुल लैंग्वेज। फ्यूचर ग्रोथ इसकी एब्सोल्युटली है बिकॉज जो हम स्केल कर रहे हैं जिस ग्रोथ से, उसके लिए हमें इस टाइप की लैंग्वेजेस चाहिए। लर्निंग कर्व्स में आते हैं तो या इट्स little bit of difficulty starting from it's slightly flattered but hence you understand the concept. आप इसके धीरे धीरे कंसेप्ट समझेंगे, आपको पता चलेगा how it works, then the learning curve will be just exponentially increasing. एंड बात करते हैं इसकी कम्युनिटी रिसोर्स, देयर आर एन नंबर्स ऑफ कम्युनिटी लाइक रिएक्ट की खुद की, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नोड.जेएस, लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉट्स ऑफ न्यू पैकेजेस आर इंट्रोड्यूसिंग डे बाय डे. सो community resources are empty of available in the internet, so you can go and check it.
And personal interests are people who are more creative, who are most focused in UI side, front end side. I'll suggest you have to choose TypeScript. So next language हम choose करते हैं, it's some little difficult language for most of the people. Syntax are difficult, its way of writing is difficult. I am talking about Java. And I'll not if there is a middle category between A and B, so I categorize between here, because Java is one of the thing which is hated by most of the developers, not because ये hard है to write or to learn, because it's complex structure that makes developer hard to understand. The market demand of this language is also increasing day by day, so its language is also updating. मैं उसको इस कैटेगरी में नहीं रखूँगा, मैं इसको ए कैटेगरी में शिफ्ट कर दूंगा बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जैसे हम देखते हैं. जैसे मेनली यूज़ होता है बैकएंड के लिए, बैकएंड एंटरप्राइज सिस्टम बनाने के लिए, CRM ऑपरेशंस के लिए, एंड वाइडली इट्स यूज फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको बनानी है बाय यूजिंग इट्स फ्रेमवर्क लाइक Kotlin, जो कि हम आगे बात करेंगे. एंड मार्केट डिमांड आर इंक्रीजिंग बाय द रिपोर्ट, इट्स telling around 54.8% as usage will be increased in next year. So yeah, the jobs demands will be increasing all automatically. Salary is a little bit moderate because of complexity and reliability of the application is so in high demand. सो इंडिपेंडेंसी इसमें नहीं आती, आपको किसी चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है फॉर जावा. सो इसके लिए अराउंड $97,000 to $98,000 इन US इज़ देयर फॉर सैलरी. एंड फ्यूचर ग्रोथ इज़ एब्सोल्युटली देयर. स्टेबल बट स्लोअर ग्रोथ होगी देन पाइथन और जावास्क्रिप्ट. इसके लर्निंग कर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसकी लर्निंग स्टार्ट जर्नी देखेंगे तो इट्स एन इंटरमीडिएट, स्टार्टिंग ही इंटरमीडिएट लेवल से होती है, बिकॉज ऑफ आपके बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. यू हैव टू स्टिक अराउंड द फंडामेंटल्स, यू हैव टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर, सिंटैक्स. सो या इफ़ यू आर विलिंग फॉर मेकिंग गुड एंटरप्राइजेज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, कुछ नेटवर्क प्रिपेयर करना चाहते हैं और यू आर मोस्ट वाइडली यूज, आप इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दिस टाइप ऑफ यूज़ केस आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल ऐप्स का ही ज़माना है, सो एंड्रॉयड के लिए आप जावा यूज़ कर सकते हैं. बात करते हैं द अंडररेटेड लैंग्वेज, आई विल कॉल इट. गूगल की खुद की लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड बाय देम, इट्स नोन एज गो लैंग्वेज, और मैं इसको रेट करूँगा अराउंड कैटेगरी बी. बात करते हैं इसकी करियर गोल्स पे कि किस लिए काम आता है. इस बेसिकली वर्क एज अ क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज, बैक एंड, डेवऑप्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. फ्यूचर डिमांड्स भी अगर आप देखें तो अराउंड 2.26% ही हाइप होगी एंड अराउंड 0.53% ही ग्रोथ है फॉर नेक्स्ट ईयर. सो दैट्स वाई इट्स टिपिकली less in demand. But yes, the people who are learning and mastering it have a lot of good amount of salary of it, of around $135,000 to $150,000 also in US, and also in Bangalore around 28 to 32 LPA pack for this language. Future growth इसका बहुत अच्छा है because the supporting thing is Google, which is a giant in tech company. अगर कोई Golang सीखना चाहता है so they are very empty of opportunities in future. इसका learning का भी थोड़ा सा intermediate रहता है, from beginner to intermediate रहता है. इसकी community धीरे धीरे grow हो रही है because of less number of people knowing about it. And Kubernetes, Docker, internals and all things are related to Golang, जो performant backend services, system services and backend things ज़्यादा यूज प्रीफर करते हैं फॉर डेवलपमेंट. नेक्स्ट जो लैंग्वेज में हम बात करेंगे, जो मैं मानूंगा कि वो इस साल की सबसे टॉप रेटेड लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ दिस यूज केस ऑफ हिज न्यू अचीवमेंट्स. सो मैं बात कर रहा हूँ द लैंग्वेज नोन एज रस्ट, और रस्ट को मैं कैटेगराइज करूँगा अराउंड इन एस कैटेगरी. द अपकमिंग थिंग्स विच विल बी इवॉल्व in 2026 and in future year that will be handled by this language only. सो इसकी फ्यूचर गोल्स की बात करें तो इट्स सेफ फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, यू हैव टू गो फॉर क्रिप्टो, आगे ब्लॉकचेन, वेब3, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड लॉट्स ऑफ टास्क लाइक सेफ कॉन्करेंसी, perform critical task in a network. So this type of thing will be very hype in the future. बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी है, मार्केट डिमांड कितना है. इट्स हैव अ स्मॉल मार्केट शेयर अराउंड 1.47% एंड ऑल्सो 0.42 से इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है कि इसकी सैलरी रेंज अराउंड 43 to 50 LPA भी जाती है इन द मेट्रो सिटी. यहाँ पर भी सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस की बात होगी. वहाँ पे रस्ट की लैंग्वेज, वहाँ पे रस्ट लैंग्वेज इज़ वेरी यूजफुल.
लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीपर रहता है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, ओनरशिप मॉडल रिक्वायर्ड एंड लॉट्स मोर थिंग्स आर देयर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग सिंटैक्स और बेसिक कंसेप्ट, इट्स ऑल अबाउट दैट द बैक एंड थिंग्स विच आर रनिंग ऑटोमेटिकली हैंडल बाय अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो आपको इसको मैनुअली हैंडल करना पड़ता है. दैट्स वाई द लर्निंग कर्व्स आर स्टीपर देन एज यूजुअल. बात करते हैं नेक्स्ट नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज C++ लैंग्वेज, एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट C++ here in C category. It's not about language, it's about the alternatives are so good that this language is nearly about to downgrade its own potential. बात करें इसके करियर गोल्स और इसके जो स्कोप्स है, बेसिकली इट वर्क्स इन गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम, फाइनेंस में VR, AR, all type of graphical things are done by in C++. Talking about market demands and salary, market demand इसकी हाईली इंक्रीज होगी बिकॉज इसके जो गेमिंग स्टूडियोज़ है और इस टाइप की जो कंपनीज़ है वो हाईली इंक्रीज हो रही है. एंड द AR, VR विजन्स कंपनीज, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर इंक्रीजिंग, सो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी. बट वाई आई पुट इन C कैटेगरी, बिकॉज लिजिट अपॉर्चुनिटीज़ कम अवेलेबल है. You can barely name the good amount of gaming studios which are present in the market so that you can practice or you can sharpen your skills in the C++ language. But अगर आपको growth के बारे में देखना है तो it's growing exponentially, highly increasing by 11% of growth. एंड फ्यूचर ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी है बाय स्टेबल द गेम्स इंजन एंड फॉर मॉडिफाइंग ग्राफिक्स, क्रिटिकल डोमेन्स जैसे हमारा AR, VR विजन हुआ. सो इस टाइप की फ्यूचर ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है. पर्सनल इंटरेस्ट मैं उसको ही कहूँगा हु वांट टू सिलेक्ट दिस लैंग्वेज, हु इज सिस्टम ओरिएंटेड, गेम ओरिएंटेड एंड वांट टू बिल्ड ऑफ योर ओन एंड वांट टू टेक रिस्क ऑल्सो. तो लास्ट लैंग्वेज हम बात कर लेते हैं जो कि है शिफ्ट लैंग्वेज. एंड I'll tell you it's not a common language जो कि हर कोई प्रैक्टिस easily कर पाता है. बट येस, आजकल सबके पास iPhone और सब आ चुका है. इट्स मेनली डेवलप बाय अ कंपनी नोन एज एप्पल. एंड ये एप्पल इकोसिस्टम को ये बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, बिल्ड कर सकता है. So I give him D category because it's not about its potential, it's about its scope and the dependency which is required for learn this type of languages like Shift. It's very important that you have a Mac OS, आपको कुछ particular software होने चाहिए तो ही आप इसको अच्छे से सीख पाते हैं. बट आजकल बहुत सारे एम्यूलेटर्स और बहुत कुछ चीज़ें आ चुकी है विच यू कैन लर्न. मार्केट डिमांड इसकी अच्छी है. इट्स गुड फॉर स्टार्टर ऐप डेवलपर्स फॉर iOS डेवलपमेंट एंड इट्स अराउंड 8 LPA टू रेंजिंग फ्रॉम 20 LPAs इन इंडिया. एंड ग्लोबल एंटरप्राइज डिमांड इज़ लेस इन सिटीज़ देन सिटीज़. जैसे आपकी कॉमन सिटीज़ में आपको शिफ्ट लैंग्वेज डेवलपर नहीं मिलेगा बिकॉज दे प्रीफर रिएक्ट नेटिव and this cross platform application. Future growth stable for Apple performance and Apple growth system, nothing else. लर्निंग कर्व्स देखिए, क्लीन मॉडर्न सिंटेक्स है, अप्रोच फॉर बिगिनर्स, कम्युनिटी अच्छी है एंड रिच है, बीट ग्राउंड रूटेड है. बट या स्टिल स्पेसिफिकली फॉर एप्पल यूज़र हुआ जस्ट विलिंग टू क्रिएट इट्स ओन एप्पल एप्लीकेशन. सो हमने अभी तक डिस्कस की अराउंड 6 लैंग्वेजेस और मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा. आई जस्ट कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर दैट वी हैव डिस्कस. ऑल द लैंग्वेज आर गुड, ऑल द लैंग्वेजेस आर बेस्ट इन देयर नीश, बट यू हैव टू एक्सप्लोर कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज करनी है. सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो फॉर हेल्पिंग यू आउट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउट और यू वांट टू आस्क समथिंग, कमेंट इन दिस वीडियो एंड आई जस्ट ट्राई टू इंस्टेंटली रिप्लाई टू योर थॉट. और अगर आपको इंटर्नशिप के रिलेटेड, किसी कोडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप. ऑल द डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड ज्वाइन नाउ. इट्स completely free. Also you can follow me on my Instagram. My Instagram handle is this. So if you like my content, share करो with a friend who wants to start its coding journey. Like करो and also subscribe to my channel because it's very important. So मिलते हैं next video में. Until keep coding, keep smiling. See you. Bye bye.